Hello everyone, welcome to Aishwarya Maths classes. Today we will continue with our series Quantitative Aptitude and we will discuss about percentage only. So let's start. Okay, so if we need to find out 60% of 20, then this means 60 by 100 into 20. Okay, this percentage is actually 1 upon 100 where 100 is the base for the percentage. Okay, so after cancelling common terms out which are actually zeros, so it will give us 12. So that means 60% of 20 is actually equals to 12. Now let's revise some topics, which is percentage to fraction and fraction to percentage. Okay, these are the basic convergence in which if I write 50% and I need to convert it into a fraction, then how I am going to do that? I will simply convert this percentage and write it as 50 by 100, and after cancelling out the common terms I get the required fraction, which is 1 upon 2 here. So 50% is actually equals to 1 upon 2. Similarly, if I want to convert 1 upon 2 into percentage, then what I am going to do, I will multiply it simply by 100, and after cancelling I will get 50. That means 1 upon 2 is actually equals to 50%. Okay, this was easy. In the previous section, what we did one formula which was to find out the new value. New value, it can be a new price or anything. So a new value, and for finding out the new value, what we do, we simply add 1 to the percentage which is decreasing or increasing. So if I say percentage, so it may be increasing or decreasing. It depends upon the sign it carries. Either increasing, so it will carry a positive sign, and or it is decreasing, then it will carry a negative sign. Fine. And we will multiply this by the original price, or we can say the original value. Okay, we will discuss it with the question. So let's start by taking an example, and the example is the price of potatoes was rupees 70 and now it is increased by 30%. Find its new price. Fine. So first of all, we have an original price of potatoes which is equals to rupees 70, and it is now increased by 30%. Fine. So the increment is 30% and we need to find the new price. So we will use the previous formula, which was the new price is equals to 1 plus, because there is an increment. So 1 plus 30% multiplied by the original price. Fine, after substituting the values, we get 1 plus 30 by 100 into the original price, which was 70. This implies that we have 130 by 100. Fine. This becomes, after LCM, this becomes 100 plus 30. So it is equals to 130 only, right? So 130 by 100 into 70, which is equals to how much it will be? 91. Fine. So the new price is 91, which is the answer. So the next question is, Ram buys 1.5 kg more sugar than before. What was the original price of the sugar if the decrement presently is 20%? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कह रहे हैं राम अब खरीद रहा है 1.5 kg मोर शुगर, तो यानी कि अगर वो पहले x kg शुगर खरीद रहा था तो अब वो x kg खरीद रहा है प्लस 1.5 kg भी खरीद रहा है. Okay, so Ram buys 1.5 kg more sugar than before. What was the original price of the sugar if the decrement presently is 20%? यानी कि अब जैसे डिक्रीमेंट हो गई है तो जिस प्राइस पे वो x kg शुगर खरीद रहा था उसका प्राइस कितना है, और यहाँ पे जो अब ये 1.5 kg मोर शुगर खरीद रहे हैं वो 20% डिक्रीमेंट होने के बाद खरीद रहे हैं.
तो अब हम इसका प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टेबल बना लेते हैं सिंपल सी। तो अब हमने सिंपल सी टेबल बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला कॉलम हम बोलेंगे जो ओरिजिनल प्राइस का है, मीन्स जो कि ओरिजिनल था पहले, और फिर उसके बाद सेकंड जब डिक्रीमेंट के बाद न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी आई वो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या हमें निकालना, क्या पे हमें निकालना है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। तो हमें एक्चुअली में ये निकालना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर निकालना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेस लेके चलते हैं 100, और ये हमारा आंसर नहीं है, ये हम बेस लेके चल रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर आप चाहो तो एक्स वाई भी ले सकते हो, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा। तो हम 100 लेके चलते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा न्यू प्राइस आएगा डिक्रीमेंट होने के बाद का जो होगा। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं जो पिछले वाला लगाया था हमने, जिसमें था न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि अब यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, so that is why 1 minus 20% into the original value जो कि अभी हमने 100 ली है, तो हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं, which is equals to 1, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो 100 minus 20/100 आप करोगे तो सेम आएगा आपका, into 100, so that will be equal to rupees 80. Fine. So after decrement rupees 100 के बजाय ये हो जाएगा रुपीज़ 80। फाइन। अब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मान के चला था कि वो एक्स के जी, जो राम है वो एक्स के जी क्वांटिटी शुगर की खरीद रहा था। फाइन। सो यहाँ पे हमने एक्स के जी लिख लिया जो कि ओरिजिनल के केस में था। अब क्या हुआ, न्यू प्राइस होने के बाद जब डिक्रीमेंट हुई तो वो इतने पैसे में फिर उसके बाद और भी 1.5 केजी और शुगर खरीद सकता है। तो अब जो प्राइस हम मतलब जो क्वांटिटी लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि पहले का जो एक्स वो खरीदा था प्लस 1.5, तो ये टोटल केजी हो गया हमारा। फाइन। तो अब हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी जो थी वो हो गई एक्स, और न्यू क्वांटिटी हो गई हमारी एक्स प्लस 1.5 केजी। अब यहाँ पे आती बारी एक्सपेंडिचर की। अभी यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे भी अगर ई है तो यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर ई होगा। फाइन। अच्छा, अब हम एक कंसेप्ट करते हैं जो कि इस क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होने वाला है, और वो कंसेप्ट है एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फाइन। यानी कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और उसके प्राइस के पे डिपेंड करता है। फिर जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वो उस हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको एक तरीके से हम ई इज इक्वल्स टू क्यू पी या पी क्यू हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। फाइन। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है और क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। फाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है और क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज होता चला जाएगा, और सिमिलरली वाइस वर्सा होगा कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज होता जा रहा है तो प्राइस डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अभी ये भी हमें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। Since the expenditure is the same in both the cases, so we will equate both the expenditures. That means if I say this is E1 and this is E2, so here in this question we have E1 is equals to E2. And since we have E1 and E2, so therefore we have E1 is equals to P1Q1 and E2 is equals to P2Q2. Since we have two prices and two quantities which are different. Okay, so after substituting we get P1 Q1 which is equals to P2 Q2, and after substituting again we get 100 Q1 which is equals to 80 Q2. Fine. And since we have Q1 is equals to X, fine, this is Q1 and this is Q2, so we have 100 times X which is equals to 80 times Q2 which is X plus 1.5. After cancelling out the common terms, we get this will become 4 and this will become 5. So we have 5x which is equals to 4x. We will multiply 4 with both of the values. So it will become 4x plus, okay, 6.0. So 6.0. Okay. So this implies 5x if we take 4x to the left hand side of the
equal value. So it will become 5x minus 4x, which is equals to 6 only, which implies x is equals to 6. This means that the Q1 is equals to 6 kg. So राम जो पहले खरीदता था वो 6 kg शुगर खरीदता था, और अब उसके बाद जो उनकी शुगर हो गई है वो x plus 15, दैट मीन 6 kgs plus 1.5 विच इज इक्वल्स टू 7.5 kgs थी. वैसे हमें न्यू वैल्यू न्यू क्वांटिटी नहीं निकालनी थी, हमें बस यहीं तक रहना है कि हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू पी क्यू, उस हिसाब से हम यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू, याद है हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी थी, ओरिजिनल प्राइस निकालना था हमें यहाँ वाला. फाइन, तो ये ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमने इसको एज अ बेस कंसिडर करा था. तो अभी हम इसको क्या करेंगे कि ये वाला प्राइस 100 नहीं लिखेंगे, अब हमारे पास ये एक एक्सपेंडिचर आ गया है. फाइन, आई मीन क्वांटिटी आ गई है और हमारे पास एक्सपेंडिचर इवन है अब. एंड क्योंकि हमें प्राइस निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास है E इज इक्वल्स टू पी क्यू, E इज इक्वल्स टू पी क्यू, so this implies the original price will become E by Q, which is further equals to even E1 P1 Q1. Fine, so P1 is equals to E1 by Q1, which is equals to, this will remain even and this Q1 will gets converted to 6 kgs. अब यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर गिवन हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सपोज 360 डिग्री की वो पहले 360 रुपीज़ का पहले खरीदते थे राम, और फिर उसके बाद अब कितना हो गया, तो उस हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर गिवन होगा. इन केस यहाँ पे एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे E1 छोड़ देंगे. अदरवाइज अगर यहाँ पे E1 गिवन होगा तो आप इसको सॉल्व आउट करके P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज़ द ओरिजिनल वैल्यू. फाइन, ओके. Now the question is, the price of capsicum is increased by 20%. What will be the percentage change in its quantity so that the expenditure is not affected? Fine. So first of all, we are going to make a table like this, where the first column is going to be the original values and the second column will be for the new values. Fine. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ द कैप्सिकम इज इंक्रीज बाय 20%. दैट मीन्स अगर हम प्राइस को 100 रुपीज़ मान लेते हैं तो उसके बाद इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी, हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस 20%, दैट मीन्स 20/100 इंटू 100 विच विल बिकम 120. जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए आपका ₹120. ओके, और उसके बाद ये जो 100 रुपीज़ है ये एक्चुअल नहीं है, ये हम बेस लेके चल रहा है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था. अब हम क्या करते हैं, हमें इनसे, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी सो दैट द एक्सपेंडिचर इज नॉट अफेक्टेड. यानी कि अगर हम E1 एक्सपेंडिचर 1 ले लें और E2 एक्सपेंडिचर 2 ले लें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसे अफेक्ट नहीं होना है तो यानी कि E1 इज इक्वल्स टू E2, यानी कि पहले जितना ये एक्सपेंड करते थे कैप्सिकम खरीदने में उतना अभी भी स्पेंड करना है, लेकिन फ़र्क इतना है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, तो हमें वो परसेंटेज चेंज निकालना है इस क्वांटिटी का. तो सबसे पहले हम यहाँ पे Q1 मान लेते हैं एंड वी टेक दिस एज Q2, and since E1 is equals to E2, so we are going to write P1 Q1 is equals to P2 Q2, which implies after substituting the values 100 Q1 is equals to 120 Q2. Fine, which will imply Q2 is equals to 100 Q1 by 120 or 5 by 6 Q1. Fine. Now to find the percentage change, we will use the formula quantity 2 minus quantity 1 by quantity 1 times 100. Fine. So after substituting the values in the formula, we get 5 by 6 Q1 minus Q1 by Q1 into 100 is equals to 5 Q1 minus 6 Q1 by 6 Q1 times 100. Fine, we get Q1 upon 6 Q1 into 100, and after cancelling out the Q1 obviously we get 1 by 6 times 100, and after solving it out we get 1.16.6% माइनस में, यानी कि ये माइनस बता रहा है कि ये डिक्रीमेंट होने वाला है क्वांटिटी में, तो यानी कि कितने परसेंटेज चेंज होने वाला है, यानी कि कितने परसेंट डिक्रीज होने वाली है क्वांटिटी, वो होने वाली है 16.16%, जो कि हमारे ये आंसर था.
और क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि परसेंटेज चेंज बताना है क्वांटिटी का, सो दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट अफेक्टेड, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटी 1 निकालनी थी या क्वांटिटी 2 निकालनी थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये साफ साफ बोला है कि एक्सपेंडिचर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये बोल रहे एक्सपेंडिचर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पहले एक्सपेंडिचर था बाद में भी वही रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली सी बात है वो न्यू क्वांटिटी ही पूछ रहे थे, तो यानी कि हमें ये निकालना है Q2, और वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। सो Q2 इज 16.6% जो उन्होंने हमसे पूछा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if income of Ram is 10% more than Shyam's income, then Shyam's income is how much percent less than Ram's income? So we will write first of all Ram's income over here and Shyam's income over here. Fine. So the first statement is, if income of Ram is 10% more than Shyam's income. So if we let that Shyam's income is rupees 100, so Ram's income is going to be 10% more than that. That means 1 plus 10%, that means 10 by 100 times 100, which is Shyam's income, is going to be 100 plus 10, and this will get cancelled. So it imply 110. So that means if Shyam's income is rupees 100, so Ram's income is going to be rupees 110. Now he is asking that Shyam's income is how much percent less than Ram's income. So what we will do, we will use our previous formula, which was new value, which was equals to 1 minus x percent, 1 minus x percent times the original one, 1 minus x percent, the original value. Fine. And we will use it over here because we need to find out the Shyam's income percentage change. Means the Shyam's income is how much percent less than Ram's income. So the focus here is Shyam's income. Fine. And we will consider the new value right now as rupees 100. So we will write it over here, equals to 1 minus x times x upon 100, multiply the original value, and the original value now will become the Ram's income. So it will be 110, and after that we get 100 minus x upon 100 into 110. Okay, so we get 100 minus x, which is equals to 100 into 100 upon 110. हमने just cross multiply किया है इसको भी, which will be equals to, ये यहाँ पे cancel हो जाएगा, so 1000 by 11. And this implies if we take x to the right hand side and this term to the left hand side of the equal sign, then we get 100 minus 1000 upon 11, which is equals to x, which is equals to, अगर हम इसको LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1100 minus 1000 upon 11, which is equals to x. Okay, so this will imply 100 upon 11, which is equals to x, and after solving it out we get 9.09%. That means Shyam's income is 9.09% less than that of Ram's. Okay, so the next question is, the price of a fridge is first decreased by 15% while buying from a manufacturer, and after that the retailer himself sold it to the customer with a 5% increment in its price. What was the percentage change in the price of a fridge? तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले तो एक फ्रिज है जिसको खरीदा जा रहा है और इसको सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर खरीद रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर खरीद रहे हैं इसको, वो 15% डिक्रीज्ड प्राइस में खरीद रहे हैं। मतलब जितना प्राइस, सपोज यहाँ पे प्राइस उसका ₹100 है फ्रिज का, और मैन्युफैक्चरर ने खरीदा तो उसको -15% मीन्स 15% डिक्रीमेंट में खरीदा। तो जब हम इसको पुराने वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 minus 15% the original value मीन्स 100, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए ₹85. ओके, वाइल बाइंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, एंड आफ्टर दैट द रिटेलर, क्योंकि फिर रिटेलर ने खरीद लिया और रिटेलर ने जब मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो उसको फिर कस्टमर को सोल्ड कर दिया, 5% इंक्रीमेंट में। तो यहाँ से उन्होंने 5% इंक्रीमेंट किया, और जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए ₹80
9.25। तो अब आप देख सकते हैं इतनी सारी कैलकुलेशन, और क्योंकि आपको ये 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो परसेंटेज चेंज क्योंकि हमें निकालना है इन द प्राइस ऑफ द फ्रिज, तो उसके लिए एक इजी शॉर्टकट क्वेश्चन है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, और वो बहुत इजी फॉर्मूला है और उसको हर कोई यूज़ करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे देख लेंगे कि कितने परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 15% डिक्रीज़ हो रहा है वाइल बाइंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है उसी फ्रिज के प्राइस में 5% की। तो यहाँ पे आ गया +5% इंक्रीमेंट में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम ए ले लेते हैं -15% और बी ले लेते हैं 5%। और जो हर कोई फॉर्मूला यूज़ करता है शॉर्टकट को, वो ये है दैट a + b + a टाइम्स b अपॉन 100। इस फॉर्मूले में हम माइनस और प्लस साइन के साथ ही इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा -15% + 5% प्लस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं -15 टाइम्स 5 अपॉन 100 परसेंट एंड परसेंट, तो यहाँ पे एज अ होल परसेंट आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे -43/3%, जिसको हम डेसिमल में जब इसको सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -10.75%। फाइन, सो द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द फ्रिज इज -10.75%। मीन्स डिक्रीमेंट तो आएगी तो ये उसी का ही साइन है, अदरवाइज जो परसेंटेज है वो है 10.75%। ओके, now the next question is, Ram will be considered as a passed student if he will get 40% marks in exams. However, Ram scores 35 marks. What will be the maximum marks of exams if he fails by 5 marks? क्वेश्चन समझ में आया कि राम कंसिडर करा जाएगा एक पास स्टूडेंट की तरह अगर वो 40% मार्क्स ले आता है, लेकिन राम ने स्कोर कर दिया 35 मार्क्स, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 5 मार्क्स से वो फेल भी हो गया है। तो हमें बस ये बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रियल लाइफ की तरह जोड़ के देखते हैं कि जब भी हमारे मार्क्स आते हैं तो उसकी परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वो ऐसे निकालते हैं कि कितने हमने मार्क्स ऑब्टेन करे, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन द मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 एंड इक्वल्स टू जो भी परसेंटेज आती है हमारी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फाइन, तो हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक मार्जिन लेके चलते हैं जो कि पास स्टूडेंट का है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने बोला है 40%, जिसके आगे वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40% का मार्जिन हमने ले लिया। अब क्या करते हैं हम, राम ने स्कोर करा है 35 मार्क्स और वो 5 मार्क्स से फेल भी हो गया, तो यानी कि उसका यहाँ से ड्रॉप हो गया होगा -5 मार्क्स, और यहाँ पे आके उसने स्कोर कर लिया 35 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 35 मार्क्स को यहाँ तक ले आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 40। तो यानी कि अगर जो भी पास होता है यहाँ पे, तो उसको 40 के इक्वल मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे सबसे पहले तो ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके होंगे 40। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हम ऑब्टेन्ड मार्क्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40, जो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स है यहाँ पे, अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स जो कि हमें निकालने हैं इनटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू x%। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है 40% है, तो यहाँ पे हम 40% लिख देते हैं। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम इधर आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम मार्क्स विच इज़ इक्वल टू 40 इंटू 100/40, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा विच विल बी 100। दैट मीन्स जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे। ठीक है, ओके। Okay guys, this is for today. I'm soon going to upload an assignment related to this topic that will definitely have difficulty level questions, and not to worry, I will discuss assignments in live classes. So if you like this lecture, then please like, share, subscribe and comment below. Thank you.